Hello students, welcome in HV Studies, a home for government job aspirants. HV CTAT Commission series. Students, in this series, today we will discuss reform in education system. Most important questions from reform in education system जो maximum time आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं. अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट देख लेते हो तो आपके रिफॉर्म इन एजुकेशन सिस्टम के सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे. Students, let's begin. If you have any doubt or query, you can consult our professionals on our WhatsApp number 8278723715. Let's begin. First question of today is the 10+2 system of education was suggested by शिक्षा का 10+2 सिस्टम किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था, किस कमीशन के द्वारा? कोठारी कमीशन 1964-66, मुद्दालियर कमीशन 1953-54, राधाकृष्णन कमीशन 1948-49. None of these. Students, take your answer and at the end of video check your scorecard. Analyze your preparation with us. Your mastery depends on focus, patience and practice, not on luck. So keep on practice. Stay focused with us. Here right answer is option number A. Kothari Commission 1964 and 66 suggested 10+2 system of education. It was headed by physics professor Dr. D.S. Kothari. Next question is the article of Indian Constitution which provides for universal free education up to the age of 14 is. भारतीय संविधान का वो आर्टिकल जो 14 वर्ष के एज तक बच्चों को फ्री यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है. आर्टिकल 56, 65, 45, 48. Here right answer is option number C. Article 45 provides free universal free education up to the age of 14. Next is which of the following gave the suggestion to divide the secondary level curriculum into course A and course B? सेकेंडरी लेवल करिकुलम को कोर्स ए और कोर्स बी में डिवाइड करना चाहिए. मुदालियर कमीशन, हंटर कमीशन, वुड डिस्पैच और नन ऑफ दीज. Here right answer is option number B, Hunter Commission. Next is UNESCO is located in. UNESCO कहाँ प्रेजेंट है? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, स्पेन. Yes students, UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, जिसकी फॉर्मेशन 4 नवंबर 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो पेरिस, फ्रांस में प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज गांधी स्कीम ऑफ एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन was propounded in the year. गांधी की बेसिक एजुकेशन स्कीम कब propound की गई थी, किस ईयर propound की गई थी? 1935, 1936, 1937, 1938. Her right answer is 1937. Students, this basic education concept of Gandhi ji is the most important question और यहाँ से maximum time आपको questions एग्जाम में देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट इज हु एस्टैब्लिश्ड द सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन इंडिया? भारत में सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट को किसने एस्टैब्लिश किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, चार्ल्स वुड, लॉर्ड कैनिंग. हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, Charles Wood. Next is
Who presided over All India Education Conference held in 1937? ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो 1937 में हुई थी, उसको किसने प्रिजाइड ओवर किया था, किसने हेड किया था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, प्रोफेसर केटी शाह, महात्मा गांधी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी उस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर थे 7 स्टेट्स के, तो उन्होंने ही इस कॉन्फ्रेंस को हेड किया था। इसके बाद ही जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम भी उनका आया था 1937। नेक्स्ट इज हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन? मॉडर्न इंडियन एजुकेशन का फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था? चार्टर एक्ट ऑफ 1813, मैकॉलेस मिंट, educational efforts of the missionaries, none of these. Here right answer is option number A, Charter Act of 1813 laid the foundation stone of modern Indian education. Next is the National Literacy Mission, that is NLM, was started in National Literacy Mission राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू किया गया था? Very important question and also most repeated question. 1988, 1978, 1985, 1982. Here right answer is option number A, in 1988. नेशनल लिटरेसी मिशन का मेन एम था जो भी अडल्ट नॉन इलिटरेट पर्सनस हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 15 से 35 की एज के जो अशिक्षित पर्सन हैं, अडल्ट्स हैं, उनको उनमें लिटरेसी इम्पार्ट करना, उनको साक्षर बनाना, यही इस मिशन का मेन एम था। इसके लिए इन्होंने TLC प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, टोटल लिटरेसी कैंपेन। नेक्स्ट इज द एंग्लिसिस्ट और क्लासिसिस्ट कंट्रोवर्सी केम टू एंड बिकॉज ऑफ एंग्लिसिस्ट और क्लासिसिस्ट कंट्रोवर्सी। एंग्लिसिस्ट जो इंग्लिश एजुकेशन को प्रेफर करते थे, फेवर करते थे, और क्लासिसिस्ट जो एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही, जो पहले से एग्जिस्ट है सिस्टम, उसी को ही फेवर करते थे, दैट आर क्लासिसिस्ट। क्लासिसिस्ट आर आल्सो नोन एज ओरिएंटलिस्ट। तो उनके बीच में कंट्रोवर्सी हो गई थी। उसका एंड कब हुआ था, किसके द्वारा किया गया था? बिकॉज ऑफ मैकॉलेस मिंट, मैंटिक्स रेजोल्यूशन, वुड्स डिस्पैच, लॉर्ड कर्जन्स एजुकेशनल पॉलिसी। यस स्टूडेंट्स, here right answer is option number A, मैकॉलेस मिंट। एंग्लिस्ट जो थे वो इंग्लिश एजुकेशन को प्रेफर करते थे, और क्लासिसिस्ट जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी को ही फेवर करते थे। नेक्स्ट, इफ स्टूडेंट डिटेंट इन अ क्लास फॉर मोर देन अ ईयर इज नोन एज। अगर एक स्टूडेंट जो वो एक ही क्लास में एक से ज़्यादा साल लगाता है तो उसे क्या कहा जाता है? वेस्टेज, एलिमिनेशन, स्टेग्नेशन, नन ऑफ दीज। इट्स स्टेग्नेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन इन प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया वाज आइडेंटिफाइड बाय। वेस्टेज और स्टेग्नेशन की प्रॉब्लम प्राइमरी एजुकेशन में किसके द्वारा आइडेंटिफाई की गई थी भारत में? हार्टोग कमेटी, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, मुदालिर कमीशन। स्टूडेंट, अगर आपको एग्ज़ाम में प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बनता है, कोई भी क्वेश्चन बनता है, तो प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड मेन आपकी कमेटी रहती है हार्टोग कमेटी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हार्टोग कमेटी। नेक्स्ट इज in which year the Right of Children to Free and Compulsory Education Act was passed? किस वर्ष राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट पास किया गया था? 2005, 9, 10 और 12 में।
बी 2009 में। स्टूडेंट्स, आपके लिए मेरे यहाँ एक क्वेश्चन है, आपने बताना है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कब इफेक्टिव कर दिया गया था ऑल ओवर इंडिया में। नेक्स्ट इज हु डिक्लेयर द 1854 पॉलिसी किसने डिक्लेयर की थी? मैकॉले, विलियम बेंटिक, ऑकलैंड और चार्ल्स वुड। Here right answer is option number D, चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इनका अदर ये देखें तो ये हैड एन important effect on spreading English learning and female education in India. Next is, when was social education in India renamed as adult education? भारत में सोशल एजुकेशन को अडल्ट एजुकेशन से चेंज कर दिया गया था। 5 जून 1977, 26 जनवरी 1976, 15 जनवरी 1976, 2 अक्टूबर 1978। The right answer is option number D. On 2 October 1978, social education in India renamed as adult education. Next is, the Total Literacy Campaign TLC was first started in the state of, very important question, Total Literacy Campaign was first started in the state of, Total Literacy Campaign किस स्टेट में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था? केरला, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो ये राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरला। केरला स्टेट के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में जनवरी 26, 1989 में टीएलसी कैंपेन स्टार्ट किया गया था, और उसके एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर ही टीएलसी मॉडल जो था वो मास लिटरेसी के लिए स्टार्ट किया गया था। Here right answer is option number next is, बर्धा स्कीम इज पॉपुलरली नोन एज, बर्धा स्कीम को पॉपुलरली क्या कहा जाता है? नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव। मोस्ट कॉमनली से बेसिक एजुकेशन कहा जाता है, लेकिन इसे नई तालीम, बुनियादी शिक्षा सभी नाम दिया जाता है। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज, द प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड OBB वाज इनिशिएटेड बाय, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, और नन ऑफ दीज। Here right answer is option number C, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। जो सेकेंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में, उसके द्वारा ही इसको इनिशिएट किया गया था, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, टू इम्पार्ट क्वालिटी ऑफ स्कूल प्रोसेस, और प्राइमरी स्कूल लेवल के ऊपर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट इज, हु स्टार्टेड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटीज? यूनिवर्सिटीज़ को गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट दिए जाने का सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड हाल्डेन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, माइकल ई सैडलर। हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ये बोला था कि स्टार्ट किया था कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ को गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट दी जाएगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस लॉर्ड कर्जन एस्टैब्लिश द सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट? इनमें से किस प्रोविंस में लॉर्ड कर्जन के द्वारा सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया गया था, स्थापित किया गया था? बिहार, बंगाल, मद्रास,
United Province. Here right answer is option number A, बिहार. बिहार के पूसा रीजन में 1 अप्रैल 1904 में सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया था बाय लॉर्ड कर्जन. नेक्स्ट इज इन विच ईयर हंटर कमीशन हैड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट. हंटर कमीशन ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी? 1885, 1884, 1883, 1882. Here right answer is option number C, 1883. हंटर कमीशन जो था वो कंस्टिट्यूट किया गया था 3 अप्रैल 1882 and it submitted its report in 1883, October 1883. इसमें 36 recommendations, ये 36 recommendation थी regarding the primary education. Next is which commission recommended a common education structure of 10+2+3 for the whole country? किस कमीशन के द्वारा कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर 10+2+3 पूरे देश के लिए रेकमेंड किया गया था? मुदालिर कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, कोठारी कमीशन. हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बाय नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. यहाँ इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है. इसको पूरे देश में लागू कर दिया था, इसकी तरह इसको इफेक्टिव बना दिया गया था. नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 फर्स्ट ऑफ ऑल रेकमेंड जो किया था वो कोठारी कमीशन ने किया था. एट द टाइम ऑफ कोठारी कमीशन देयर वर 4 पैटर्न ऑफ एजुकेशन स्ट्रक्चर. तो वो 4 सिस्टम क्या थे? पहला था आपका 10+2+3, देन 10+2+2, देन 11+3, देन 11-12+1+3. Therefore, Kothari Commission emphasized the necessity of introduction of a uniform education structure 10+2+3. So here right answer will be option number D, Kothari Commission. Start NP नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के द्वारा किया गया था, लेकिन ये रेकमेंड जो किया था फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसने किया था? कोठारी कमीशन ने. नेक्स्ट इज द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी ऑफ एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय. शिक्षा की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी किसके द्वारा एडवोकेट की गई थी? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड मैकॉले. डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी थी क्या? इट वाज एडवोकेटेड बाय लॉर्ड मैकॉले. लॉर्ड मैकॉले जो थे वो चाहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन जो है वो हायर सोसाइटी के लोगों को ही दी जाए, और इससे वो ऐसी क्लास बनाना चाहते, क्लास ऑफ पर्सन बनाना चाहते थे जो बाई ब्लड तो इंडियन हो लेकिन उनका टेस्ट, मॉरल्स और इंटेलेक्ट जो वो इंग्लिश हो. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मैकॉले. यही थी आपकी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी. नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्रे इन करिकुलम? करिकुलम में कर्रे का क्या मीनिंग है? टू रन, टू एक्सेस, टू इम्प्रूव, टू बूस्ट. Yes students, write your answer in comment box, and if you like the video then don't forget like, share and subscribe and hit the bell icon. अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं then subscribe and hit the like bell icon to get further notifications. हमारी प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन था the first test developed to measure intelligence was designed by. इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए पहला टेस्ट किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? उसका राइट आंसर था विनेट एंड सीमन. दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू.